Well, students, we have been doing waves and types of waves. So we have already discussed in the video lecture 1 longitudinal wave, transverse wave, and we have discussed in details about the mechanical waves, non-mechanical waves. Now, on the basis of energy propagation, 5 p.m. plus 1 batch start. On the basis of energy propagation, yes, students, on the basis of energy propagation, we get a wave called progressive waves. Progressive waves. ओपन योर नोटबुक, पेन, डेस्क पे बैठ के आप पढ़ोगे स्कूल की तरह. Yes, students, progressive wave. In progressive wave, energy is propagated. Write down these waves advances in a medium with definite velocity. चलो मैं भी लिखता हूं. These waves advances in the medium with definite velocity. These waves propagate energy in the medium. It propagates energy in the medium yes, students, on the basis of energy propagation, progressive wave, these waves advances in the medium with definite velocity. It propagates energy in the medium. आप पूछेंगे सर प्रोग्रेसिव वेव. हाँ जी, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का प्रोपेगेशन होना बहुत जरूरी है और इनकी जो वेलोसिटी है under certain given conditions should be fixed, and that is, there is a fixed velocity. So what is that all about? What energy it propagates? It propagates sound energy, it propagates light energy. It propagates sound energy, light energy, sound wave, light wave, sound waves, light waves.
आप पूछेंगे सर साउंड वेव में एनर्जी, यस, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, अगर तो क्या होता है, जो हमारा स्पीकर है उसका कोन वाइब्रेट करता है, एयर वाइब्रेट करती है, एज ए रिजल्ट आवर ईयर ड्रम्स के ऊपर एक सेंसेशंस आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, साउंड इज एनर्जी। अरे यार, आपने देखा होगा जब फाइटर एयरक्राफ्ट सॉर्टीज करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बड़ी धड़ाम की आवाज आती है, रैटलिंग ऑफ विंडोज टेक प्लेस। साउंड इज एनर्जी। लाइट वेव्स, लाइट, ऑब्वियसली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड बोथ position and momentum of microscopic particles with absolute certainty and accuracy. Delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. तो वहां भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं that energy propagation is there. तो प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ मीडियम में एडवांस होती है, एंड प्रोग्रेसिव वेव वो वेव है जिसमें एनर्जी मीडियम में प्रोपेगेट करती है। मैं फिर बोल रहा हूं, एनर्जी प्रोपेगेट करती है, मीडियम पार्टिकल्स नहीं, ना, ओनली एनर्जी। कई बार एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, सर फिर तो मास भी करता होगा ना, only energy, mass energy is equivalence, but yahan E equal to mc square is not applicable to mechanical waves. Equal to mc square is not applicable to mechanical waves. So progressive waves, these waves advances in the medium with definite velocity and it propagates energy in the medium. तो साउंड वेव इज एनर्जी, लाइट वेव इज एनर्जी। सो नॉट ए बिग डील, इससे ज्यादा हमें जाना नहीं है, इट्स ओके, फाइन। नाउ सेकंड इज स्टेशनरी वेव्स। नाम खुद ही अपने आप में सजेस्ट करता है कि स्टेशनरी वेव्स होती क्या हैं। स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी भी होती है लेकिन वो प्रोपेगेट नहीं करती। ये जो एनर्जी है, इट इज कंफाइंड बिटवीन द टू बाउंड्रीज। एनर्जी इज कंफाइंड बिटवीन द टू बाउंड्रीज, करेक्ट? These waves remain stationary. Energy is not propagated. Okay. For example, waves formed in string. So bound between two boundaries. Fine. It's bound between two boundaries. This wave remains stationary. These waves remain stationary. Energy is not propagated by these waves. एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड। तो ये कहाँ फॉर्म होंगी? स्ट्रिंग्स में, ऑर्गन पाइप्स में, ये स्ट्रिंग्स में बनती हैं
जैसे गिटार्स, ऑर्गन पाइप, फ्लूट, etc. So, stationary waves bound between two boundaries remain stationary. Energy is not propagated by these waves. These are formed in strings and in organ pipes. So, make it students, note it down. And अब हम इसके बाद on the basis of dimensions पे study करेंगे types of waves on the basis of dimension. पहले आप इसे नोट कर लीजिए. Well, students, on the basis of dimensions, the first is one dimensional wave. One dimensional wave. बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा बोलते हैं कि सर ये आप लिखते क्यों बोर्ड पे? एक तो बेटा my subject is always here and I want to give you the actual teaching with a pace. Means जो एक्चुअल ऑफलाइन क्लास पेस है उस एंगल से मैं आपको पढ़ाता हूं. एंड स्टूडेंट्स, हमें लिखना है, लिखना है, लिखना है. जब हम अपने हाथ से कुछ भी लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो ब्रेन को इम्पैक्ट करता है. ये सही बोल रहा हूं मैं, और जल्दी लर्न होता है. वन डायमेंशन, और एग्जाम भी हमारा रिटन पैटर्न पे है, तो इसलिए CBSE एग्जाम्स या एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, उसमें तो आपने लिखना है. तो हाउ यू कैन से कि मेरे को तो याद है जी, किसी ने सुनना नहीं है, राइट? सो वन डायमेंशनल वेव, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ए सिंगल डायरेक्शन ओनली. एनर्जी is transferred in a single direction only. अब आप पूछेंगे सर एनर्जी ट्रांसफर इन सिंगल डायरेक्शन. तार खींच लो बिटवीन द टू एंड्स, प्लग करो. एक तारा बोले तुन तुन. ओ पंजाब में हमारे फोक सिंगर्स के पास होता है एक लंबा सा तुम भी बोलते हैं उसको, उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, टिंग लिंग 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 लाइक दिस. एक गाना भी है, एक तारा बोले तुन तुन. ओ तुन 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 तुन, वो क्या है? Energy is transferred in a single direction only, in a string instrument, single string instrument. String गाना सुना दिया, तारा बोले. बीच बीच में हम मस्ती करते रहते हैं. अब स्टूडेंट्स खुशी खुशी पढ़ो यार, है ना? तो सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट. नोट करो इसे. आई मीन अब मैं बोल देता हूँ, नोट करो, आपकी इच्छा है. टू डायमेंशनल वेव, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ए प्लेन. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड in a plane. What is the, अच्छा एक और F आएगा. What is the meaning of energy transferred in a plane? अरे यार एक ही F होता है ट्रांसफर्ड में. आप ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को.
व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए प्लेन? वाटर सरफेस देखा है? वाटर सरफेस सर्कस नहीं, वाटर सरफेस के ऊपर जो एनर्जी जो वेव बनती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन. दैट इज ए टू डायमेंशनल वेव बन गया और एनर्जी जो है ट्रांसफर क्या हो रही है? वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वेव प्रोपेगेटिंग on the surface of water. That is called two-dimensional wave. That is called two-dimensional wave. अब वन डायमेंशनल किया, टू डायमेंशनल किया, टू के बाद क्या आएगा? थ्री डायमेंशनल वेव. क्या आएगा? थ्री डायमेंशनल वेव. लो, लेट्स गो फॉर थ्री डायमेंशनल. आप नोट करो, मैं रब करता हूं. नाउ थ्री डायमेंशनल वेव. Any guess? Any guess, students? Energy transferred in three-dimensional space. कोई एग्जाम्पल? अरे यार, एनर्जी propagated in space. Energy propagated in space. What is that? Light. When wave energy is propagated or wave is propagated in space, the light is propagated in space. Sound is propagated in space. This is three-dimensional propagation. OX, OY and OZ. तीनों ही डायरेक्शंस में ये प्रोपेगेट करेगा. दैट इज व्हाट द थ्री डायमेंशनल प्रोपेगेशन. ये नोट कीजिए, लाइट है, साउंड है, यही है, बस दो, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत है बाबू? जस्ट नोट इट डाउन. ओके, सो मैं आगे निकलता हूँ. सम अदर टाइप्स आल्सो. So students, now we are going to discuss some other waves, right? So some other waves, some other waves. अब some other waves में we talk about what? Matter waves. The waves associated with the moving particles. Waves associated with moving particles is called matter wave, are called matter wave. आपको लग रहा होगा कि सर आप हंस क्यों रहे हो? मैं जब ये वाला जब मेरे को क्लास में पढ़ा रहे थे ना एज ए स्टूडेंट, तो मैं खड़ा हो गया. मैंने कहा हमें मैम पढ़ा रहे थे. मैंने कहा मैम
ये जो आंधी तूफान आता है उसमें जो आँखों में हमारे डस्ट पड़ जाती है, ऐसे साफ करते हैं हम, आँखों में डस्ट पड़ जाती है, तो वो फिर ये मैटर वेव है। नहीं स्टूडेंट्स, वो नहीं है, मतलब वो तो डस्ट है, वो तो हवा के साथ उड़ रही है, दैट इज अदर थिंग। मैटर वेव्स में मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग पार्टिकल्स होंगे, काइंड ऑफ उसमें particles of the material medium is also traveling with the wave, that is called a matter wave, right? So फिर आता है स्टूडेंट्स ऑडिबल और साउंड वेव्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी जो रेंज करती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, 20 hertz to 20 kilohertz, these are generated by vocal cords। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, वोकल कॉर्ड्स। ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक रेंज वेरी करती है। दीज आर प्रोपिगेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, membrane, stretched elastic strings, और हम जो बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, राइट? वोकल कॉर्ड्स, membrane, तबला, right? The 20 hertz to 20 kilohertz तक these are generated by vibrating bodies, right? अब स्ट्रेस स्ट्रिंग्स लेके जैसे हम गिटार में बजाते हैं टिंग 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 टिंग, वो तो सिंगल स्ट्रिंग है। कॉर्ड्स 1 2 छ छ छ, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर ऑडिबल और साउंड वेव्स। नेक्स्ट काम स्टूडेंट्स नोट करो जल्दी से, फटाफट मैं रब करूं। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक waves, these waves are produced when the frequency is less than 20 hertz। पता ही नहीं चलता ये कब आती हैं। मालूम ये कहाँ है? सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक, इनका वेवलेंथ पता कितना आता है? 16.6 मीटर। हे बाप रे, 16.6 मीटर वेवलेंथ्स आर ग्रेटर, नॉट इतना होता है, ग्रेटर देन 16.6 मीटर। तभी तो पूरी धरती में कंपन पैदा होती है। द होल अर्थ शेक्स। राम ना करे ऐसा हो भाई। तो ग्रेटर देन 16.6 मीटर, तो वेव प्रोड्यूस ड्यूरिंग earthquake and wave produced in ocean, these are called infrasonic waves. Oceans maybe, these are called
इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक जो वेव होती है वो होती है जानी ऑडिबल वेव, और जो लेस देन 20 हर्ट्ज दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। और इंफ्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ देख के चक्कर आता है भैया, इट इज 16.6 मीटर। ठीक है, अब इसको नोट कीजिएगा, काय को मेरे को दिखता। अब आगे निकलते, लेट्स मूव अगली वेव दैट विल बी सो अल्ट्रासोनिक वेव्स, frequency greater than 20 kilohertz. कोई है, ये हम लोगों को सुनता नहीं है। अब्बा डब्बा चप्पा मीन्स 20 किलोहर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर हो जाए किसी वेव की तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट इट, नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पता नहीं। ओके, कुछ शक्ति मान बेशक सुन ले, तो 20 हर्ट्ज से ऊपर ह्यूमन ईयर कैनॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। सर्टेन क्रिएचर्स, जैसे कुछ दुनिया में क्रिएचर्स हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं। मच्छर, मॉस्किटो, कई लोग मच्छर को मच्छर बोलते हैं, ठीक। आदमी से जानवर ज्यादा वफादार है, भौं भौं डॉग, हमारा डॉगी। ये 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को जज कर लेता है। हाउस इट। और वैसा वो कौन है जो उल्टे उल्टे लटकते हैं पेड़ों पे, उनको अपन क्या बोलते हैं? बैट्स, चमगादड़ परिवार। ये भी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज को कर लेता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मैक बोलते हैं, MACH मैक। 1 मैक इज 332 मीटर पर सेकेंड। और मालूम है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ कितनी है? लेस देन 1.66 सेंटीमीटर। लैम्डा इज लेस देन 1.66 सेंटीमीटर। और these waves are used for navigation under, not jewelry बनाने वाला, sound navigation and ranging sonar. So students, these waves are used for navigation under water sonar. They are used in ultra oceanography. Ultra SCAN, मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूं, चलेगा? अल्ट्रा oceanography, and students, it is also used in photography or scanning soft tissue of body. Scanning
soft tissue of body, soft tissues of body. They are also used to repel mosquito. आपने देखा होगा, बड़ी बार न्यूज़ में सुनते हैं कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मॉस्किटो को रिपेल कर देती है. वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है और ये मच्छर महाराज को भगा देती है. अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ना, इससे मछलियां अट्रैक्ट होती हैं. इंटरेस्टिंग, इजंट इट? अल्ट्रासोनिक वेव्स, वेवलेंथ 1.66 सेंटीमीटर. You have earlier studied infrasonic waves having wavelength 16.6 मीटर. ये 1.66 और 16.6 एक ऐसा फिगर है जो मतलब हमें कंफर्टेबल करता है, राइट? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो समुंदर के नीचे ओशियनोग्राफी करने में मदद करती हैं बरखुदार. जब जहाज पानी में चल रहा होता है तो समंदर के नीचे बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी वेल, मछलियां होती हैं. तो सोनार से लेमडा पढ़ा होगा आपने, +1 में चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन से पहले, मेजरमेंट्स वाला. तो सोनार से साउंड वेव्स को फेंकते हैं, वो टकरा के वापस आती हैं, इको होती है, और वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑब्स्टेकल कितना नीचे है. हम लोग इसको नहीं सुन सकते. वी कैनॉट लिसन अल्ट्रासोनिक वेव्स. इनका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा. हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज बिलो और 20 किलो हर्ट्ज अबव अपन नहीं सुन सकता. हम नहीं सुन सकते. करेक्ट? सो स्टूडेंट्स, इसके बाद नोट कर लो, इसके बाद एक और वेव आएगी. पहले इसको नोट करो. उस वेव का नाम मालूम है क्या है? जब आप न्यूमेरिकल करते हो नहीं निकलते तो क्या लगता है? ओह, शॉक, है ना? शॉकिंग वेव्स. नोट करो, मैं रब करता हूं. अब मैं आपको थोड़ा जानकारी देने जा रहा हूं शॉक वेव्स. Now I'm going to introduce you the simple definition of shock waves. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ shock waves ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. मुझे एक स्टूडेंट बोलता है, यू हैव रिटन द लेक्चर्स आर इन इंग्लिश बट यू आर स्पीकिंग इन हिंदी आल्सो. तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं बताओ. तो मैंने कहा अगली बार ना मैं 2 लैंग्वेज बीच बीच में पंजाबी भी लगा दिया करूंगा, ठीक है? यार स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ नोट करो, आपको हर चीज़ वीडियो मिल रही है. कभी भी कहीं भी किसी भी जगह बैठ के पढ़ सकते हो, है ना? विपिन सर, एक गाना था ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा. यानी कि विपिन सर आपके साथ ही जाएंगे जहां मर्जी हो, बस इंटरनेट होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए. बोलो यूट्यूब महाराज की जय. When an object moves with a velocity greater than that of sound,
it is called supersonic wave. जब आप 332 मीटर पर सेकेंड से तेज मूव कर रहे हो तो जो आप वेव प्रोड्यूस करोगे या जो स्पीड है वो सुपरसोनिक हो जाएगी. When such a supersonic body, अरे यार फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल, when such a supersonic body, say plane travels in air, it produces energetic disturbances which moves in backward direction, and students diverges in the form of a cone. Diverges in the form of a cone. That is called what? That is called supersonic waves. ये देखिए, ये उड़ रहा है जहाज और इसके पीछे क्या बन रही है? Supersonic waves. Speed is greater than 332 मीटर पर सेकेंड. अब इसको मैक नंबर में मेजर करते हैं. द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेजर्ड इन द मैक नंबर. विच नंबर? मैक नंबर. मैक नंबर कैसे निकालेंगे? Mach number is what? Mach number is velocity of source divided by velocity of sound. For example, अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड 664 मीटर पर सेकेंड है तो इसको 332 से डिवाइड किया तो ये कितना नंबर आ गया? 2 मैक नंबर. दिस इज 2 मैक नंबर. सो स्टूडेंट्स, होप इट इज ऑल क्लियर. ये कोई मुश्किल चीज नहीं है यार. सिंपल सी डेफिनेशंस हैं. ऐसे ही सुन सकते हो, समझ भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आपको जो एक्सप्लेन कर चुके हैं वो आपके सामने है. कैसा लगा? थोड़ा मस्ती भी करते रहते हैं कभी कभी. अभी सिंपल है, वेव्स शुरू हो गई हैं तो डेली 5 बजे ये क्लास चलती जाएगी. अच्छा स्टूडेंट्स, एक ना मेरी ऐप है. ओके, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, कभी पहले भी बोल दूंगा, राइट? वो ऐप है, उसका नाम क्या है? चलो लिखता हूँ. आज थोड़ा उस ऐप के बारे में बताता हूं. आज 2-3 मिनट उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूं. एक तो मेरी वेबसाइट है www.topranker.com.
.com। अगर आप topränker.com खाली गूगल प्ले स्टोर में भी डाल देते हो तो भी आप ऐप में जा सकते हो, नहीं तो ये वेबसाइट खुलेगी, इसके एक तरफ ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल बार मिलेंगे आपको, इसको क्लिक करोगे तो वो मांगेगा रजिस्टर, तो आप रजिस्टर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इसके अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस मिल सकते हैं आपको, मल्टीपल चॉइस। आप एक चैप्टर के 10 टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो खुद ब खुद, और जैसे आपने टेस्ट कंडक्ट किया, सॉल्व किया, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हैं उसके आपको रॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, साथ में आपको अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मिल जाएगा जो सिर्फ आपको पता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है जो प्रैक्टिस बहुत बिलीव करते हैं प्रैक्टिस में। वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में द ओनली वे टू एक्सेल इज प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। सो बरखुदार, आप topränker.com 1 साल के लिए ले लीजिए। मैं आपके साथ हूं फिजिक्स में। और इसकी स्पेलिंग PHYSI, फिजिक्स, PHYSICS, PHYSICS, राइट। आज एक्चुअली मेरी वर्कशॉप्स थी सुबह से, और फिर आपका लेक्चर आ गया 5 बजे वाला। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको 5 PM वाला लेक्चर मिले ही मिले। तो स्टूडेंट्स, कर लो या डाउनलोड, कुछ नहीं होता, राइट, फ़ायदा ही है इसमें। ठीक, चलो एनीवे, तो ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है विपिन सर ने। मैं सभी बच्चों को टीच करना चाहता हूं जो कहीं भी हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर टाउन में, हर कॉलोनी में, जहां जो भी विपिन सर से पढ़ना चाहता है, वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो आपको कैसे लगे ये लेक्चर्स, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, एंड होप करता हूं कि आपको मजा आ रहा पढ़ के। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर 5 बजे। चैप्टर है वेव्स +1।